تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عظمت و جلال میں منفرد ہے اور اپنی مخلوق کو بے تحاشا نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اپنے بندوں کو طاعتوں کی توفیق دی اور ان پر ان کی مدد کی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود نازل کرے ان پر، ان کے ایمان و ہدایت والے آل و اصحاب پر اور ان کی بیویوں پر اور اچھی طرح ان کی پیروی کرنے والوں پر، جب تک زمانے کا آنا جانا رہے، اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، مومنو، میں خود کو اور تم کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تم طاعتوں پر کاربند رہ کر اور حرام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جس نے تقوی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کامیاب ہوا، اور جو خواہشات کے پیچھے چلا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ امت مسلمہ، یقیناً حقیقی کامیابی جس کے لیے نیک عقل مند لوگ تگ و دو کرتے ہیں وہ ہے جہنم سے خود کو آزاد کرنا۔ ہر انسان صبح کرتا ہے اور خود کو فروخت کرتا ہے، وہ یا تو خود کو جہنم سے آزاد کرتا ہے یا تباہ و برباد۔ اور کامیابی جنت میں داخلے کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے، اس لیے آخرت میں کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے کہ آخرت میں کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں، یا تو جہنم ہے یا جنت۔ لفظ ہٹایا جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ معاملہ جد و جہد، صبر اور استقلال کا محتاج ہے، کیونکہ جہنم، اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے پناہ دے، شہوات سے گھری ہوئی ہے اور شہوات کی طرف نفسوں کا جھکاؤ رہتا ہے، اس لیے انسان ان سے بمشکل ہی دور رہ پاتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے دوزخ کو پیدا کیا تو جبریل سے کہا، جاؤ اور دوزخ کو دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے اور دیکھ کر آئے۔ واپس آ کر کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، کوئی نہیں جو اس کے متعلق سنے اور پھر اس میں داخل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا، پھر فرمایا، اے جبریل، جاؤ اور اسے دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے اور اسے دیکھا، پھر آئے اور کہا، اے میرے رب، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ ایمانی بھائیوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو جہنم سے آزادی کا موسم بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے سال کے تمام مہینوں میں ایسے نیک اعمال مہیا کیے ہیں جن کی بدولت وہ جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں عظیم ترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے لیے عبادت کو خالص کرنا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس سے وہ اللہ کی خوشنودی چاہے۔ ان نیک اعمال میں سے 5 نمازوں کی پابندی ہے، وہ جہنم سے آزادی کا بڑا سبب ہے، خصوصاً فجر اور عصر کی نمازیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو سورج کے طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر۔ اسی طرح جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد 4 رکعت کی پابندی کی، اس پر اللہ جہنم حرام کر دیتا ہے۔ روزہ جہنم سے بچانے والی ڈھال اور ایک مضبوط قلعہ ہے، اس لیے اگر رمضان کا روزہ ختم ہو گیا ہے تو نفل روزہ باقی ہے۔
शव्वाल के 6 रोज़े, सोमवार और जुमेरात के रोज़े और हर महीने के 3 रोज़े। सबसे बेहतर रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, यानी एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन रोज़ा ना रखना। ईमानी भाइयों, जहन्नम से आज़ादी के असबाब में से हुस्न खुलुक और लोगों के साथ नरमी और नरम बर्ताव है। इसलिए जो जहन्नम से आज़ाद होना चाहे वो अपने बर्ताव में नरम हो, अपने भाइयों के साथ नरमी और आसानी का मामला करे, उनसे खंदा पेशानी के साथ मिले और उनके साथ बुर्दबारी का मामला करे। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें उस बंदे की खबर ना दूं जो जहन्नम पर हराम है या जिस पर जहन्नम हराम है। जहन्नम हर उस बंदे पर हराम है जो करीब रहने वाला, नरम और आसान हो। इसे इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इसी तरह जो शख्स बेटियों से नवाजा गया है या जिसके पास बहनें हैं और उनके साथ उसने अच्छा मामला किया और उनकी इज्जत की, तो वो उसके लिए जहन्नम से बचाने वाली ढाल और जन्नत में जाने का सबब होंगी। मुस्नद इमाम अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 3 बेटियां या 3 बहनें या 2 बेटियां या 2 बहनें हैं और उसने उनके साथ अच्छा मामला किया, उन पर सब्र किया और उनके मामले में अल्लाह से डरा, तो जन्नत में जाएगा। मुस्नद की एक दूसरी रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 3 बेटियां हों जिन्हें वो पनाह देता है, उन पर रहम करता है और उनकी किफ़ालत करता है, जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। आपसे पूछा गया, ये अल्लाह के रसूल, अगर 2 बेटियां हों तो? आपने फरमाया, अगर 2 बेटियां हों तो भी। रावी कहते हैं, कुछ लोगों का ख्याल था अगर एक लड़की की बात होती तो आप एक लड़की के लिए भी यही फरमाते। मोमिनो, लाचार वो है जो दुआ से कासिर हो, क्योंकि जहन्नम से आज़ादी के लिए कसरत से दुआ करना जहन्नम से नजात का सबब है। सुनन तिरमिज़ी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से 3 मरतबा जन्नत मांगे तो जन्नत कहती है, ये अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर, और जो जहन्नम से 3 मरतबा पनाह मांगे तो जहन्नम कहती है, ये अल्लाह तो उसे जहन्नम से पनाह दे। और अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों और चुनिंदा मुत्तक़ियों का जिक्र करते हुए फरमाया, रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर फ़रोतनी के साथ चलते हैं, और जब बेइल्म लोग उनसे बातें करने लगते हैं तो वो कहते हैं सलाम है, और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातें गुजार देते हैं, और जो ये दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख का अज़ाब परे ही परे रख, क्योंकि उसका अज़ाब चिमट जाने वाला है। अल्लाह ताला हमें उससे पनाह दे। बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत में बरकत दे और उनकी आयत व हिकमत से मुझे और आपको फ़ायदा पहुँचाए। मैं यो कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, और अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए हर गुनाह ख़ता की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप उससे मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, ना कोई उसकी अता व नवाजिश का रोकने वाला है, ना कोई उसका फ़ैसला रद्द करने वाला है, और ना ही उसके सिवा कोई माबूद बरहक़ है। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे, रसूल और चुनीदा हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल करे आप पर, आपके आल व असहाब पर और आपसे मोहब्बत करने वालों पर। अम्मा बाद, मोमिन, चूँकि मोमिन उन अमाल की जस्तजू करता है जिनके सिले में वो जहन्नम से आज़ादी की उम्मीद करता है, इसलिए ज़रूरी है कि उन अमाल से बचे जिन पर जहन्नम में जाने की वईद मुरतब होती है। और जो चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा जहन्नम में औंधे मुँह डालने वाली है, वो उनकी ज़मानों के अमाल हैं, जैसा कि इसकी ख़बर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। क्योंकि ज़बान की बुराइयां इमारत को ढा देती हैं, उल्फत व महब्बत को बिगाड़ देती हैं, कीना व बुग़्ज़ फैलाती हैं,
शिराज़ा मुंतशिर करती हैं, ख़ुसूसन सोशल मीडिया की तरक्की की मौजूदगी में, जिसकी कुछ लोग ज़्यादा परवाह नहीं करते। इसलिए शरीयत ने गीबत और चुगलखोरी को हराम करार दिया है, मुसलमान की आबरू का दिफा करने पर उभारा है और उसे जहन्नम से आज़ादी का सबब करार दिया है। मुस्नद इमाम अहमद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपने भाई की आबरू का गायबाना दिफा करेगा, अल्लाह पर हक़ है कि उसे जहन्नम से आज़ाद करे। जब ये मामला आम मुसलमानों के हक़ में है तो हुक्मरानों और उलमा के हक़ में इसकी शान और कदर ज़्यादा बढ़ जाती है। भाइयों, क़यामत के दिन नजात दिलाने वाली चीज़ों में से बाकी रहने वाले नेक कामों पर कारबंद रहना है। चुनांचे सुनन नसाई में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द थे कि आपने फरमाया, अपनी ढाल ले लो। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, किसी दुश्मन से बचने के लिए जो आ पहुँचा है? ऐ अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया, नहीं, बल्कि जहन्नम से बचने के लिए ढाल ले लो। तुम कहो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये क़यामत के दिन बचाने वाले और पहरा देने वाले बनकर आएंगे और ये बाकी रहने वाले अमाल हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम तरीन अमल के बारे में फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आँखें ऐसी हैं जिन्हें आग छू नहीं सकती। एक वो आँख जो अल्लाह के डर से रोए और एक वो आँख जो अल्लाह के रास्ते पर पहरा दे। यहाँ जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया गया है, यानी आँख बोलकर पूरा जिस्म मुराद लिया गया है। बंदा जब अल्लाह की अज़मत व क़ुदरत को याद करके अपनी हालत और अपने रब के हक़ में अपनी कोताही पर गौर करता है और उसके इक़ाब के डर और उसके जलाल की हैबत से रो पड़ता है, तो जहन्नम से नजात का वादा पाने वाला बंदा है। इसी तरह जो दुश्मनों के मकर से अपने मुल्क की हिफाजत करता है, तो उसका ये अमल क़यामत के दिन उसकी नजात और कामयाबी का सबब है। जब ये फ़ضल मुसलमानों के आम मुल्कों के लिए है, तो हरमैन की सरज़मीन, बल्कि हरमैन के मुहाफ़िज़ और ख़ादिम मुल्क ममलकत सऊदी अरबिया के बारे में क्या कहना। अल्लाह ताला उसे हर बुराई से महफूज रखे। इसके बाद मोमिनो, जान लो कि अल्लाह ने तुमको एक बावक़ार हुक्म दिया है, जिसमें उसने अपनी ज़ात से शुरू करते हुए फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। ऐ अल्लाह, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़वाज मुतहरात और ज़ुर्रियत पर दुरूद नाजिल फरमा, जैसा कि तूने आले इब्राहिम पर दुरूद नाजिल फरमाया, और मोहम्मद पर आपकी अज़वाज मुतहरात और ज़ुर्रियत पर बरकत नाजिल फरमा, जैसा कि तूने आले इब्राहिम पर बरकत नाजिल फरमाई। बेशक तू ही लायक हम्द व बुज़ुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह, खुलफ़ा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राज़ी हो जा। तमाम सहाबा, ताबईन से और अच्छी तरह उनके नक्श कदम पर ता क़यामत चलने वालों से राज़ी हो जा, और हमसे भी राज़ी हो जा अपने फ़ضल करम मौजूद व सखा से। ऐ अरहमर राहिमीन, ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता फ़रमा, इस मुल्क को अमन, सुकून और खुशहाली का गहवारा बना, और तमाम मुस्लिम ममालिक को भी। ऐ अल्लाह, हमारे वतन को अमन अता फ़रमा, हमारे इमाम हुक्मरान को हक़ के साथ तक़वियत दे। ऐ अल्लाह, हमारे इमाम खादिम हरमैन शरीफ़ैन और उनके वली अहद को ऐसे उमूर की तौफ़ीक़ दे जिनमें इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों की भलाई हो, और जिनमें मुल्क और बाशिंदों की भलाई हो। वो इस्लाम और मुसलमानों के लिए जो खिदमत पेश कर रहे हैं, उन पर उन्हें बेहतरीन बदला इनायत कर। ऐ अल्लाह, जो मुल्क हरमैन शरीफ़ैन ममलकत सऊदी अरब का बुरा चाहे, तो उसकी चाल को उसी पर लौटा दे और उसकी तदबीर को उसकी तबाही बना दे। ऐ अल्लाह, हम तुझे उनके मुकाबले में करते हैं और हम उनके शर से तेरी पनाह लेते हैं। ऐ अल्लाह, तो उनका कोई झंडा बुलंद ना करा, उनका कोई मकसद पूरा ना कर, और उन्हें दूसरों के लिए इबरत और निशानी बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन, क़यादत और अमन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे सिक्योरिटी अहलकारों और सरहदों के मुहाफ़िज़ीन की हिफाजत कर।
اے اللہ تو ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے اور ان کے اوپر سے ان کی حفاظت کر، اور تیری عظمت کی پناہ لیتے ہیں کہ وہ نیچے سے اچک لیے جائیں۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے لیے امن و امان، استحکام اور اطمینان و سکون مہیا کر دیں۔ اے اللہ تو ان کا معین، مددگار، معید اور سہارا بن جا۔ یا حی یا قیوم، ہم تیری رحمت کی سے مدد لیتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے تمام معاملات کو سدھار دے اور ہمارے حوالے نہ کر۔ اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے جو میرے معاملے کی حفاظت ہے، اور ہماری دنیا کو درست کر دے جس میں ہماری گزران ہے، اور ہماری آخرت کو درست کر دے جن میں ہمارا لوٹنا ہے، اور ہماری زندگی کو ہمارے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا دے، اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت بنا دے، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اے اللہ مسلمان مردوں عورتوں اور مؤمن مردوں اور عورتوں، زندہ اور فوت شدہ سب کی مغفرت فرما۔ اے ہمیں دنیا بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کو سننے والا، سب کو جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔